class. In this session we will revise our chapter number 12, that is respiration in animals and plants. Okay, so let's start. First of all, what is respiration? The process of taking oxygen into the cell, then oxidation of food with this oxygen and release of carbon dioxide and energy is called respiration. बेटा जब भी हम ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन जो होती है डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करती है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. देन वो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ऑक्सीडेशन के बाद मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, राइट? So by this we can say respiration is a biochemical process which involves intake of oxygen from the environment. Biochemical means, bio means which is related to living beings. Chemical means in which any chemical reaction is involved. So a chemical process that takes place in a body of living organism is known as biochemical process. सो रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम एयर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. देन दैट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद आवर डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. देन आफ्टर रिएक्शन it gives us energy and produces carbon dioxide, and then we release carbon dioxide by breathing. So this whole steps explain the process of respiration. So chemically we can say glucose plus oxygen gives you carbon dioxide, water and energy. After this there are two types of respiration which depend on the amounts of oxygen. First is aerobic respiration. Aerobic respiration is that respiration in which supply of oxygen is sufficient. Means it is the breakdown of glucose into carbon dioxide and water in the presence of oxygen inside the body cells. Organisms that use oxygen for respiration are called aerobes, or you can say organisms that follows aerobic respiration are known as aerobes. Majority of animals and plants have aerobic respiration. Next is anaerobic respiration. When glucose is broken down into absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. It means जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होगी, मीन्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको किसी वजह से अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो दैट टाइम anaerobic respiration will take place, right? The animals and plants that can survive and obtain energy even in the absence of oxygen are called anaerobes, or you can say organisms that follow out anaerobic respirations are called anaerobes. So chemically anaerobic respiration, glucose breakdowns in the absence of oxygen yields ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. यहाँ पे बेटा हमें वाटर नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें इथाइल अल्कोहल मिलता है. और फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा? जब भी शुगर्स मीन्स जो ग्लूकोज होता है हमारा डाइजेस्टेड फूड इट इज अ फॉर्म ऑफ अ शुगर, ठीक है, जब वो एनॉर्बिकली ब्रेक डाउन होता है तो और वो क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, राइट? आफ्टर दिस anaerobic respiration occurs in yeast, some bacteria and parasitic platforms. In absence of oxygen, glucose breaks down incompletely into ethyl alcohol and carbon dioxide. Therefore, a very small amount of energy is released. Yeast क्या होता है बेटा? Yeast एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो एनॉर्बिकली रिस्पायर करता है और इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है. इसलिए अब क्योंकि अल्कोहल यूज करता है तो इसको वाइन और बियर बनाने के लिए भी यूज करते हैं. Parasitic animals that live in an alimentary canal, roundworms and flatworms, respire anaerobically because they do not get oxygen in the alimentary canal. Alimentary canal में फूड पाइप में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती. आफ्टर दिस हमारी बॉडी में भी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस पे. जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस मीन्स बहुत तेज करना, बहुत जल्दी करना, जैसे कि फास्ट रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और हैवी एक्सरसाइज, तो हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है.
अब क्योंकि हम भाग रहे होते हैं या बहुत तेज कर रहे होते हैं, हमारे मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। तो एट दैट टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन आवर बॉडी। सो लेकिन हमारी बॉडी में इथाइल अल्कोहल की जगह क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। सम टाइम ये जो लैक्टिक एसिड होता है बेटा, जब वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमारी बॉडी को फैटिक मतलब थकान होने लग जाती है हमें, या फिर मस्कुलर क्रैम्प आ जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, और फिर हमें जैसे मोच आ जाती है या क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो हम उसको हॉट बाथ लेके मतलब गर्म पानी से सिकाई करके या जेंटल मसाज करके अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं। दिस इज बिकॉज जब हम उसे मसाज करते हैं या गर्म पानी से उसकी सिकाई करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा लैक्टिक एसिड था वो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लास लेट्स लर्न रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। First we will learn about respiratory system or respiratory organs in humans. Lungs are the main respiratory organs. They are connected with external air through nose, nasal passage, larynx, pharynx, trachea, bronchi and bronchioles. These all are parts of our respiratory system, right? And all have different function. So nose and nasal passage. वी ब्रीथ एयर थ्रू नोज और नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स बेटा जो हमारी नोज में नीचे की तरफ दो होल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। द नॉस्ट्रिल्स ओपन इनटू नसल पैसेज। फिर ये रास्ता जो जाता है, पैसेज का नाम है रास्ता, और जो रास्ता जाता है इसे बोलते हैं नसल पैसेज। नसल पैसेज में जो बच्चे एयर होती है वो हमारी नोज के हेयर के थ्रू फिल्टर होती है, वार्म होती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, और मॉइस्चर होती है लंग्स में जाने से पहले। आफ्टर दिस इट एंटर्स इनटू लैरिक्स। लैरिक्स और वॉइस बॉक्स जो होता है वो हमारा सेम होता है, इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जो कि फैरिक्स से कनेक्ट होता है। फैरिक्स बेटा स्टार्टिंग होती है आपके विंड पाइप की, उससे ऊपर का पार्ट होता है फैरिक्स। द ओपनिंग ऑफ लैरिक्स और ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम होता है बेटा फूड पाइप और विंड पाइप के रास्तों को अलग अलग करना। सो एपिग्लॉटिस जो होता है वो लिड जैसा होता है, जब भी हम कुछ भी चीज स्वेलो करते हैं तो वो बंद हो जाता है, वो विंड पाइप का रास्ता बंद कर देता है और फूड पाइप का रास्ता खोल देता है, राइट। और जब हम ब्रीथिंग करते हैं मतलब इनहेल करते हैं तो एपिग्लॉटिस खुल जाता है, जिससे कि विंड पाइप का रास्ता ओपन हो जाता है और फूड पाइप का रास्ता बंद हो जाता है। देन ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया में एयर जाती है, जो ट्रैकिया होता है बेटा वो आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। एक होती है तो ब्रोंकस होती है, दो होती है तो ब्रोंकाई होती है। आफ्टर दिस ये जो ब्रोंकाई होती है बेटा ये आगे जाके फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकाइल्स में और लंग्स में एंटर करती है। लंग ब्रोंकाइल्स जो होती है इनके पास लास्ट में जाके छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली इज कवर्ड विद द फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। मीन्स इनके आसपास जो ब्लड की ट्यूब्स होती है जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है वो इनके आसपास रहती हैं। तो जो एल्वियोली होती है दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू ब्लड फॉर एक्सेलिंग एंड टेक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, राइट। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देयर आर 4 स्टेप्स इन द रेस्पिरेशन। फर्स्ट दैट इज ब्रीथिंग, जिसमें हम एयर को इन करते हैं और बाहर निकालते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बच्चे क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो एयर से ब्लड के थ्रू ब्लड के अंदर एंटर करती है। इंटरनल रेस्पिरेशन में वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के बॉडी सेल्स के अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में आ जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में द ऑक्सीजन विच गोज इनसाइड द सेल्स रिएक्ट्स विद द digested food to provide us energy. After this we will learn how breathing takes place in human beings, right? This is the structure of our lung. The ribs are raised upwards and outwards by the contraction of rib muscles. Diaphragm down flatter. जब भी हम इनहेल करते हैं तो बेटा जो हमारी रिब्स होती हैं मतलब जो हमारा हड्डियां होती हैं, जो रिब्स होती हैं वो क्या होती है बाहर की तरफ खुल जाती है, जिससे क्या होता है लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, right? And when the volume of lungs increases, the air pressure inside the lungs decreases.
So air from the atmosphere having high pressure rushes into the lungs. अब बाहर वाली एयर में ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो लंग्स की तरफ जाती है और जो हमारे लंग्स होते हैं वो फ्रेश एयर से फिल्ड हो जाते हैं. ड्यूरिंग एक्सलेशन जो हमारे रिब्स होते हैं बेटा वो ऊपर की तरफ, जो डायफ्राम होता है एक मस्कुलर फ्लोर होता है लंग्स के नीचे, जो हमारी रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड हो जाती हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है. द वॉल्यूम ऑफ थोरियक कैविटी डिक्रीजेस एंड एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस. राइट, अब अपोजिट हो जाता है, पहले बाहर का प्रेशर ज़्यादा था, अब अंदर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है. तो जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. इसका मतलब अब जो एयर है वो मूव करेगी फ्रॉम लंग्स टू environment, right? So air from the lungs is pushed out through air passage and nostrils. After this we will learn respiration in some other organisms like earthworm. The respiration that occurs in earthworm is known as cutaneous respiration because it respirates through its skin. Their skin is moist, slimy. Slimy means बहुत बेटा पतली सी होती है, स्लिमी सी होती है. as and has numerous blood capillaries. numerous मतलब बहुत सारी, many blood capillaries होती हैं जिनके थ्रू blood flow करता है. they exchange oxygen and carbon dioxide occurs between air and blood in the skin. this is called cutaneous respiration. after this frog has lungs but it breathes through its skin when it's in water. So its skin is kept moist for respiration by mucus. That is why its skin is slippery. कॉकरोचेस बच्चे, इनके पास एक ब्रांच्ड एयर ट्यूब्स होती है जिनको ट्रैकिया बोलते हैं. ये जो फैली हुई ट्यूब्स हैं इनको ट्रैकिया बोलते हैं. इनका फाइन नेटवर्क होता है बॉडी के अंदर एंड दे ओपन ऑन द बॉडी स्पेस. मतलब जब वो बॉडी की तरफ आके खुलती है उन्हें स्पाइरेकल्स बोलते हैं. द स्पाइरेकल्स ओपन एंड क्लोज अलाउ रेस्पिरेटरी गैसेस टू मूव in and out of the air tube. Oxygen rich air enters the tracheal tubes through spiracles and diffuses into every cell of the body. Diffuses मतलब घुल जाती है, mix हो जाती है, right? After this respiration in fishes. Fishes respirate through their gills. Gills are projection of skin. Projection का मतलब होता है बेटा कोई भी बाहर की अलग से कुछ हिस्सा निकला होना. तो जो गिल्स होती है वो उनकी स्किन का ही एक पार्ट होती है, बस थोड़ी सी अलग से बनी हुई होती है. इनके पास गिल फिलामेंट होते हैं. फिलामेंट मीन्स इसका नेटवर्क होता है जिनमें इनकी ब्लड कैपिलरीज फैली होती है. द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड एंटर्स द ब्लड कैपिलरी. जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो इनकी बेटा टेडपोल लार्वा जो होता है उसमें भी गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. व्हेल्स एंड डॉल्फिन जो होती है उनके लिए उनके पास ब्लो होल होता है जिससे कि वो एयर से रेस्पिरेट करती हैं व्हेन दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर. व्हेन दे एक्सहेल दे रिलीज फाउंटेन ऑफ वाटर. ओके, आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो भी रेस्पिरेट करते हैं. दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स. सो प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो ईच पार्ट ऑफ प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर. during daytime when they carry out photosynthesis, वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसी से रेस्पिरेशन खुद भी कर लेते हैं. कुछ ऑक्सीजन वो अपने लिए यूज कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन और कुछ वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. नाइट टाइम में जो प्लांट होते हैं दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक अस. एंड आफ्टर दिस लीव्स के अंदर उनके पास स्टोमेटा होते हैं जो कि छोटे से पोर्स होते हैं जो जिनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है लीव्स में. स्टेम के पास जो स्टेमेटा होते हैं लेंटी सेल्स होते हैं जो कि एक तरीके के सेल्स होते हैं. जो बार्क होती है स्टेम की मीन्स जो उसका सॉफ्ट पार्ट होता है इंटरनल पार्ट उससे एक्सचेंज करते हैं. रूट्स के अंदर बेटा उनके पास एयर स्पेसेस होते हैं वो सॉइल पार्टिकल से ऑक्सीजन को लेते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच एवरीवन.